All right, we are moving on to some other news now. A major banking controversy has erupted in Haryana involving government funds, alleged fraud and a sharp market reaction. What began as a routine administrative decision quickly snowballed into the discovery of a massive financial discrepancy. Let's break it down step by step. Multiple Haryana government departments were maintaining official accounts at IDFC First Bank's Chandigarh branch, where public funds were routinely parked and transacted. Now, the Haryana Finance Department then issued a formal circulation de-empaneling IDFC First Bank from handling government business with immediate effect. The circular directed all departments to close their existing accounts and transfer the funds to other empaneled banks without delay. As the departments initiated account closures and sought balance confirmations, the bank's internal reconciliation process flagged significant mismatches. Further scrutiny revealed that discrepancies across several government-linked accounts totaled approximately 590 crore rupees, triggering serious concerns. Preliminary findings indicated alleged fraud involving forged checks and unauthorized fund transfers, suspected to have been carried out by certain bank branch employees in collusion with outsiders. An initial internal probe revealed that the irregularities were limited to a particular set of Haryana government-related accounts maintained at the bank's Chandigarh branch. Now, in response, the bank has suspended 4 staff members, filed a police complaint and appointed KPMG to conduct a detailed forensic audit into the irregularities. A meeting of the board's special committee for monitoring fraud cases was convened on February 20th, followed by sessions of the full audit committee and the board on February 21st. The development was formally disclosed to the public on February 22nd evening through a stock exchange filing, informing investors and regulators. Now, the Haryana government moved quickly to safeguard its funds, while the Reserve Bank of India clarified that the issue was isolated and posed no systemic risk to the broader banking sector. IDFC First Bank Managing Director and CEO V. Vaidyanathan has sought to limit the fallout, asserting that the lapse was restricted in scope and stemmed from internal collusion rather than any broader structural weaknesses. However, investor sentiment has taken a hit. Shares of IDFC First Bank tumbled by as much as 20% on Monday, erasing over 14,000 crore rupees in market capitalization in a single trading session. Beyond the immediate financial implications, this incident has led to reputational fallout for IDFC. What started as a routine government directive has now turned into a high-stakes investigation involving hundreds of crores, internal controls and shaking market confidence. With a forensic audit underway and law enforcement involved, all eyes will now be on the findings and how quickly trust can be restored. Let me in fact go across to my colleague Gulshan Grover, who's joining us live from Gurugram. Gulshan, ये जो सामने आया है alleged fraud बहुत ही massive scale का है, 500 करोड़ के करीब हम पैसों की बात कर रहे हैं जो कि फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकते हैं. ऑडिट जो है वो करवा दिया गया है, बट इन्वेस्टर सेंटिमेंट वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. ट्रेड मार्केट भी आज हम देख रहे हैं 14,000 करोड़ का लॉस हमने देखा ट्रेड एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में. गुलशन, देखिए, बिल्कुल इस बैंक के अंदर जिस तरीके से 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, इससे शेयर मार्केट में भी काफी गिरावट आई है, जो कि 20% शेयर मार्केट का रेट घटा है, जिससे निवेशकों को लगभग 14,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है. मेरे पीछे आप देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि सेक्टर 15 में ये ब्रांच है.
हालांकि जो ये पूरा फ्रॉड हुआ है वो चंडीगढ़ शाखा में हुआ है। ये आम आदमी के साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, बल्कि सरकारी सिस्टम के साथ फ्रॉड हुआ है। यानी सरकार का खाता इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में था, और जब सरकार ने इस बैंक से दूसरे बैंक में जब खाते को बदलवाना चाहा, तो तब ये सरकार को मालूम हुआ कि उनके अकाउंट से 590 करोड़ रुपए गायब है। यानी सरकारी सिस्टम के जो पैसे हैं वो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी मिलीभगत से ये सारा जो फ्रॉड है वो हुआ है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, आरबीआई भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये फ्रॉड हुआ है, जब सरकारी सिस्टम के साथ फ्रॉड हो सकता है तो आम आदमी कहां जाएगा? आम आदमी बैंक में अपना पैसा सुरक्षित देखता है, उसको लगता है कि उसका पैसा बैंक में सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है वो भी छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड। यानी ये एक दिन से फ्रॉड नहीं चल रहा है, इसका अभी जब पूरा ऑडिट होगा, जब पूरी इसकी इंक्वायरी होगी तो ये मालूम होगा कि ये कितने समय से इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। क्योंकि जो ये पैसा है ये एक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, कई अकाउंट से जो है इसका पैसा जो है अकाउंट में जो है बार बार जो है एक दूसरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो अंदर कर्मचारी सामान्य तौर पर जिस तरीके से पहले काम करते थे, अभी भी जो वैसे ही जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह की कोई अंदर जो उपभोक्ता है उनको भी इस तरह का अभी कोई इस तरह का मालूम नहीं है, क्योंकि जब जैसे जैसे लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड सरकारी खातों में हुआ है, जो कि हरियाणा सरकार के खाते थे, कई खाते थे, एक खाता भी नहीं था। तो ऐसे में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है, और ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि सरकारी खातों से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि यह फ्रॉड बैंक के अंदर बैठे हुए कर्मचारियों ने ही किया है। जब हरियाणा सरकार ने अपने खाते बंद करने और पैसा ट्रांसफर करने की बात कही, तो तब जाकर बैलेंस में भारी गड़बड़ी जो है वो दिखी। अब केपीएमजी इस पूरे मामले की फॉरेंसिक ऑडिट जो है उससे कराया जा रहा है। हालांकि अभी तक 4 बैंक कर्मचारियों को इसमें सस्पेंड किया गया है। अब बैंक जो है अब इन पैसों को रिकवर की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि बैंक के अंदर फ्रॉड कैसे हुआ ये सबसे बड़ी बात है। बैंक के अंदर जो ऑडिट सिस्टम है वो क्या कर रहा था, और आरबीआई की जो निगरानी सिस्टम है वो उस समय क्या कर रही थी। जो इंटरनल ऑडिट होती है या फिर कॉन्करेंट ऑडिट होती है या सिचुएटरी ऑडिट होती है, वे सब कहाँ थे? क्योंकि बैंक में हर जो ट्रांजैक्शन है वो मल्टीप्लाई लेवल पर मॉनिटर होती है। फिर आखिरकार इतने बड़े रकम का जो कि 590 करोड़ रुपए कैसे निकल गया? क्या ये सिर्फ कर्मचारियों की गलती है या फिर पूरे सिस्टम की नाकामी है? क्योंकि ये मामला सरकारी खातों से जुड़ा है, आम आदमी के पैसे कितने सुरक्षित है ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अक्सर जो है हम देखते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग बैंकों में पैसे अपना जमा कराते हैं, उन्हें लगता है कि उनका बैंक में पैसा जो है वो सुरक्षित है। लेकिन जब उन्हें ये पता लगेगा कि सरकारी पैसे ही गायब हो गए बैंक में से, तो आखिर आम आदमी अब किस पर भरोसा करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि यहाँ जो लोग हैं इस पंडरे की मार्केट में, मैं आपको दिखा दूं, तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम जानने की इनसे कोशिश भी करते हैं कि बैंक में खाते, आप बोलोगे कुछ इसमें? बैंक में आपके खाते हैं? बैंक अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से अब देश की बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के खाते थे। जब हरियाणा सरकार ने अपने खाते दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए बोला, तो तब उन्हें पता लगा कि 590 करोड़ रुपए उनके खाते से गायब हो गए हैं। कैसा देखते हैं इस पूरे सिस्टम को? भाई हम तो नहीं, आपको पूरे सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? चलो ये आपके साथ तो नहीं हुआ, जब सरकारी सिस्टम में हो रहा है तो आम आदमी के साथ तो वैसे भी हो सकता है। ऑल राइट।